औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम respected students, today we are going to discuss our next lecture that relates to the rejection of plaint. In our previous lectures, we have studied in detail the concept of plaint and other basic fundamental concepts of civil law justice system of Pakistan. By grace of Allah Almighty, today inshallah we will discuss the rejection of plaint, dismissal of the suit, amendment in pleading. These are the very important and essential concepts as well as basic questions that are repeatedly asked in various exams, including in the exam of civil judge as well as assistant district attorney, etc. You people already know very well about the concept of plaint. What is plaint? Today I will not repeat it in detail, but for sake of understanding, I will try my best to elaborate this concept in a very short manner. Plaint is a document that is prepared by the London Council for the parties and is produced before the court. It is also called the institution of a suit. When a plaint is filed in the court, generally it is said that a suit has been filed by a party. There are some essential ingredients of a plaint. Normally, we can say that the name of the court, the name of the parties, and the title of the suit. When plaint is filed before a court, it is the duty of the court to examine it according to law. What is called examination of a plaint? Normally, we can say that the court sees it judicially with some questions that appear in the mind of the court. What are those questions? Questions are relating to the cause of action as well as court fees, and at the end, clause D, the court also sees it whether the instant suit is barred by law or not. These are the basic things that court examines at the time of institution of a suit. When the court examines the plaint, what is the power of the court regarding it? Power means the authority of the court that is exercised. Inshallah, we will also see the logic and reason behind it, behind the power of the court when the court exercises its power. A plaint is also rejected at this stage. We can simply say that what are the powers of the court at the time of examination of the plaint? What functions are played by a court?
It is the power of the court to reject the plaint or return the plaint. But in some cases, a suit is also dismissed by the court. What are the requirements for the rejection of the plaint? इसको ना आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब अर्जी दावा अदालत के सामने पेश किया जाता है तो अदालत के मुख्तलिफ अख्तियारात हैं। उन अख्तियारात में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी है, रिटर्न ऑफ प्लेंट भी है, और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि अदालत दावे को खारिज भी कर सकती है। लेकिन हमें अब ये देखना पड़ेगा कि किन किन हालात में अदालत कौन सा अख्तियार इस्तेमाल करेगी। जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि अब जो ऑर्डर 7 रूल 11 है ना, सबसे पहले हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की तरफ आते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के वक्त अदालत ने किन 4 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले काज ऑफ एक्शन को, उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट ने देखना है, इसको हम कह सकते हैं कि कोर्ट फीस से मामला जो डील करता है इसको। अगर कोर्ट फीस नहीं लगाई गई या कोर्ट फीस का तयन दुरुस्त तौर पर नहीं किया गया या जो दावा दायर किया गया है ये बार्ड बाई लॉ तो नहीं है, इसके बारे में आप लोग हमेशा जहन में ये बात रख लें कि जब भी अदालत सूट को रिजेक्ट करती है, सूट हम इस सेंस में कह सकते हैं प्लेंट को, प्लेंट जब अदालत रिजेक्ट करती है तो अदालत ने कुछ चीज़ों को उस वक्त देखना है। आप ये भी कह सकते हैं कि फौरी तौर पर फोर्थविद अदालत ने प्लेंट रिजेक्ट नहीं करनी। अब अदालत का ये अख्तियार है। अब वो कौन कौन से हालात हो सकते हैं, आपको मिसाल दे रहे हैं। अगर पार्टी ने कोर्ट फीस जमा नहीं कराई या कुछ और प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं, प्रोसीजरल एरर्स हैं, तो ये अदालत का अख्तियार है कि पार्टी को अदालत वक्त देगी कि आप ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें। उसके बाद जैसे कि अदालत ने टाइम दे दिया पार्टी को, लेकिन अगर पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया, उन हालात में अदालत प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब इसका ये जैसे कि आप लोगों को शुरू में भी बताया था और ये केस लॉ भी आप लोग नोट कर लें, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास आज भेज भी दूंगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अहमियत इसकी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसका हम लॉजिक रीज़न भी देखेंगे, इम्पोर्टेंस भी देखेंगे और इसका क्रॉस रेफरेंस भी देखेंगे इन कंपैरिजन टू अदर लॉज। जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया, दावा दायर हो गया, प्लेंट का एक मखसूस तरीक़ाकार है, एक ख़ास मेथड प्रोसीजर के ताबे प्लेंट लिखी जाती है। जब जज साहब ने प्लेंट को एग्ज़ामिन करना है तो उनके ये अख्तियारात जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जजमेंट में भी दिया गया है, PLJ 2016 इस्लामाबाद। अब ये इसके ब्रीफ फैक्ट कुछ इस तरह हैं कि अदालत में दावा दायर हो गया, सूट फॉर रिकवरी एंड डैमेजेस, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। अब ये डिफेंडेंट पार्टी ने दरख्वास्त दे दी एप्लीकेशन अंडर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, तो ऑनरेबल कोर्ट ने एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और प्लेंटिव साइड को ये डायरेक्शन दे दी कि आप प्लेंट में अमेंडमेंट करके प्लेंट को दोबारा दाखिल करें। उसके बाद ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ गया जिसमें ट्रायल कोर्ट का फैसला इंटैक्ट रखा गया। अब यही बात जो असल में आप लोगों को समझानी थी कि अगर कोई प्रोसीजरल एरर्स हैं तो अदालत फोर्थविद प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करेगी, पार्टीज़ को टाइम देगी। एक ये सूरत हाल है।
अब इसमें आप अथॉरिटी में आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और बाज़ औक़ात प्लेंट में ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं कि प्लेंट कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। वो किस तरह, अब ये मैटर करता है हर केस पर। आप मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल का। इसमें आप लोग ये नेक्स्ट केस ला है, उसमें आप लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसका रेफरेंस आप लोग नोट कर लें पहले वाले केस ला का। ये है हमारा PLJ 2016 इस्लामाबाद, पेज है 499। अब ये इसके हेड नोट्स वगैरह दिए गए हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें और पढ़ लें। बेसिक चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर कोई नोट्स वगैरह हो तो दे दें, पहला उनका सवाल। दूसरा ये होता है कि सर सवाल को अटैम्प्ट हम किस तरह करें। आप लोग ये बात गौर से सुन लें कि फ़र्ज़ किया ये सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का। अब उसमें आप आर्डर 7 रूल 11 को देखें, उसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? वो कहते हैं कि सर अक्सर हमें ये कहा जाता है कि जो रेलिवेंट आंसर है ना, आप वो लिखा करें बेयर एक्ट से। नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब आपने एक्सप्लेन तो करना है ना, आपने एग्जामिनर को समझाना तो है ना कि आपका नॉलेज कितना है। और दूसरा, आप कोई भी एग्ज़ाम आप देख लें, उसमें प्रपोजिशन भी आ रही है और साथ केस लॉ भी मांग रहे हैं कि इससे रेलिवेंट जो कोर्ट का व्यू है वो भी आप दें। इस पर बेटा ये मटेरियल फर्स्ट क्लास है, ये अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें और अपने नोट्स खुद बना लें। नोट्स आप बनाएं, मुझे भेजें, इंशाल्लाह ताला मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि ये बेस्ट मटेरियल है। जो कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है ना किसी केस लॉ की, उसमें फैक्ट्स होते हैं रियल के दावाजात वगैरह दायर हुए, उसके बाद उनका जो नतीजा निकला, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया तो वो केस रिपोर्ट हो गया। तो हम इसे नॉर्मली ये कहते हैं कि जी ये केस लॉ है इस नुक्ता पर। उसके बाद आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि पहले तो आप लोगों को 7-11 का रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ये असूल बताया कि कोर्ट टाइम देगी, क्योंकि CPC का मकसद या किसी भी कानून का मकसद है इंसाफ देना, ना कि जो प्रोसीजरल एरर्स वगैरह हैं उनकी बेस पर पार्टी को नॉन सूटेड कर दिया जाए। अब पहला असूल आप लोगों को ये बताया। अब दूसरा, अब ये देख लें आप लोग 1985 CLC पेज है 342। अब ये बहुत मशहूर केस लॉ है, बेसिक आ रहा है, देख लें ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल हमारे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात वगैरह होते हैं तो उनमें इस केस लॉ को कोट किया जाता है। अब प्लेंट रिजेक्ट कब होती है, किन हालात में? पहले आप लोगों को ये बताया कि जी जो प्रोसीजरल एरर्स वगैरह हैं तो कोर्ट पार्टीज को टाइम देगी। अब इसका प्रिंसिपल नंबर 2, असूल नंबर 2 आप लोग ज़रा गौर से देख लें और समझ लें। अब इस केस लॉ में सूट था, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, दावा दायर हो गया। अब इसमें मसाइल ये थे कि सेल कंसिडरेशन के बारे में नहीं बताया गया, टाइम का भी वाजे नहीं है, इसे हम आम अदालती ज़बान में कहते हैं वेग सूट, मुबहम, जो क्लियर ना हो। अब अदालत ने जब प्लेंट को पढ़ा अच्छे तरीके से, उसमें ये पाया गया कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हैं। रिक्वायरमेंट्स कैसे कि जो अक्ल सलीम प्रूडेंट माइंड तस्लीम करे कि ये दावा बनता है या नहीं बनता, काज ऑफ एक्शन बनती है या नहीं बनती। क्लियर होनी चाहिए ना हर चीज़, इसमें चीज़ें क्लियर नहीं थीं, इस बिना पर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये इसमें जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, सिविल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें मुख्तलिफ लाज हैं,
प्लेंट में मुख्तलिफ लाज ऑपरेट होते हैं एट अ टाइम। CPC की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, दावा किस कानून के ताबे दायर है। मोस्टली हमारे यहाँ जनरली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ताबे दावाजात हमारे दायर होते हैं। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक भी देखा जाता है क्या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। इसी की बेस पर ही सूट डिसाइड होता है। और इसमें प्लेंट का जैसे आप लोगों को बताया, प्लेंट रिजेक्ट भी इन हालात में हो सकती है और होती है। उसके ये प्लेंट अब ये इसका मेन है, आप लोगों को जैसे अगेन एंड अगेन गुजारिश कर रहा हूँ कि मटेरियल आप लोगों ने खुद ही कंसोलिडेट करना है, मटेरियल खुद ही बनाना है। और ये सबसे आपकी बेहतरीन कोशिश होगी और अच्छा एक समझदारी का इकदाम होगा अगर आप लोग अपना मटेरियल खुद बना लेते हैं। बेटा मटेरियल के लिए जजमेंट सबसे बेस्ट सोर्स है आपका। जब आप लोग ये चीज़ें उसमें लिखेंगे, अब ये देखें ना, इस केस लॉ में PLD 2013 है, लाहौर, पेज है 716, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का हमारा फैसला है ये। अब इसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और इसे कानून में इनकॉर्पोरेट इस प्रोविजन को क्यों किया गया है। वेरी सिंपल, आप लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कि अगर दावा झूठा है, अगर दावा मेंटेनेबल नहीं है, उसके दावा के का सर पाँव ही नहीं है, तो वो कैसे आगे प्रोसीडेबल होगा। इन हालात में प्लेंट को रिजेक्ट करना पड़ता है। इसके यही हालात और वाक़यात हैं। दूसरा, क्रॉस रेफरेंस का आप लोग थोड़ा सा जहन में रख लें। अब पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सेक्शंस हैं हमारे CRPC के 249A कैपिटल। ये क्या है, क्यों है, इसका मैं रेफरेंस CPC के साथ क्यों दे रहा हूँ। 249A कैपिटल में ये मजिस्ट्रेट का अख्तियार है कि किसी भी स्टेज पर मुल्ज़िम को अदालत बरी कर सकती है। वजह क्या है कि फ्राम द कंटेंट्स ऑफ FIR नो ऑफेंस इज मेड आउट। जब कोई ऑफेंस ही नहीं बन रहा तो उन हालात में अदालत 249A कैपिटल का रास्ता अख्तियार करती है कि बिला वजह खामखा के केसेस अदालत में ना चलते रहें। इसके पैरेलल हमारे सिविल लॉ जस्टिस सिस्टम में 711 की प्रोविजन मौजूद है कि जो केस चल ही नहीं सकता, जो अकॉर्डिंग टू लॉ केस है ही नहीं, उन हालात में ऑर्डर 7 रूल 11 का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अमेंडमेंट एंड प्लीडिंग जैसे शुरू में आप लोगों को बता रहा था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारा इंशाल्लाह ताला सिविल लॉ जस्टिस सिस्टम चलेगा। अब ये ऑर्डर 6 है, रूल 17 है, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स। प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी अमेंडमेंट कर सकता है। डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की कोर्ट से इजाज़त मांग सकता है और प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में, या पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ भी दरख्वास्त दे सकती हैं कि जी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट की जाए, प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में। तो उनके अपने ग्राउंड्स होते हैं, उनमें अपनी रीजंस होती हैं कि जी क्यों प्लेंट को अमेंड किया जाए। इसी में जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुद्दई से कोई गलती हो जाती है, उन हालात में अदालत खुद ऑर्डर कर देती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का। वेरी सिंपल, जैसे पैरा जात वाजे नहीं लिखे गए, कोर्ट फीस से मुतल्लिका पैरा सही नहीं लिखा गया, इन हालात में अदालत मुद्दई को हुक्म करती है कि जी आप प्लेंट को अमेंड करें, या कुछ चीज़ें रह जाती हैं डिटेल्स वगैरह लिखनी। लेकिन दो चीज़ें हमेशा जहन में रखें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में, एक तो काज ऑफ एक्शन चेंज ना हो और दूसरा नेचर ऑफ सूट भी चेंज ना हो। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो अमेंडमेंट अदालत अलाउ कर देती है। अब ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आप लोगों को बता दिया, अमेंडमेंट एंड प्लीडिंग बता दिया। अब नेक्स्ट आप लोग थोड़ा सा गौर से देख लें, डिसमिसल ऑफ द सूट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और चीज़ है और डिसमिसल ऑफ द सूट और चीज़ है। दावा डिसमिस कब होता है, जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को बताया, जनरली जो आम तरीक़ाकार है वो ये है कि जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद अदालत फाइनली डिसाइड करती है
नतीजा जनरली क्या निकलता है, सूट डिक्री हो जाता है या डिसमिस हो जाता है। डिसमिस कैसे हो जाता है, इन हालात में जब अदालत अपने रीजन में देती है इशू वाइज फाइंडिंग में कि प्लेंटिफ हैज़ नॉट प्रूव्ड हिज केस अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायरमेंट्स, जो इश्यूज के मुताबिक मुद्दई ने साबित करना था दावा, वो साबित नहीं कर सका। इन वजह से, इन हालात की वजह से दावा डिसमिस हो जाता है। अगर दावा डिक्री हो जाता है तो उसमें जनरली आप लोगों को पता है कि मुद्दई ने दावा साबित कर दिया। अगर प्रूव हो गया तो दावा डिक्री, अगर प्रूव नहीं कर सका तो दावा डिसमिस हो जाता है। लेकिन ये रिजेक्शन नहीं होती। रिजेक्शन का जैसे आप लोगों को बताया, ये 4 ही ग्राउंड्स हैं। काज ऑफ एक्शन वाला, कोर्ट फीस से मुतलका, ये कोर्ट फीस से मुतलका 2 प्रोविजंस हैं और एंड की इसकी प्रोविजन है बार्ड बाई एनी लॉ। अब ये लिमिटेशन की वजह से बार्ड हो गया या कोई और कानूनी तकाजा है, लॉ जिसमें एक्सप्रेस लॉ मौजूद है कि दावा इस तरह का दायर हो ही नहीं सकता। अब इसके साथ आप लोग एक और भी कंसेप्ट सुन लें, रिटर्न ऑफ प्लेंट का। प्लेंट रिटर्न कब होती है, ये ओनली इसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है, जुरिस्डिक्शन का ग्राउंड। मिसाल आप लोग समझ लें, सपोज के दावा बनता है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सामने, लैंड रेवेन्यू एक्ट के ताबे मुद्दई ने दावा दायर करना है, लेकिन वो आ जाता है सिविल कोर्ट में। इसकी मिसाल भी सुन लें, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का प्लेंटिफ सिविल कोर्ट में दावा दायर कर देता है तो कोर्ट नॉर्मली इसमें ऑर्डर करती है रिटर्न ऑफ प्लेंट का, ऑर्डर 7 रूल 10 के ताबे। वजह क्या है कि ये सिविल कोर्ट में सूट मेंटेनेबल है ही नहीं। अब ये हमारे आज के लेक्चर में 4 कंसेप्ट हो गए जो मैंने आप लोगों को तफसील के साथ एक चीज़ बताई। प्लेंट का बताया, उसके बाद फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में हमने देखा, डिसमिसल ऑफ द सूट के बारे में भी हमने देखा और रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में भी देखा। अब इस हवाले से ये जजमेंट्स जो सारी मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसका इंशाल्लाह ताला PDF में भी भेज दूंगा व्हाट्सएप में, इसको आप लोग देख लें। और जो लोग इस पर नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं या क्वेश्चन वगैरह मुझे भेजना चाहते हैं, वो आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ हम देखते जाएंगे। और ये इन 4 चीज़ों से मुतल्लिक़ अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप लोग इस पर क्वेश्चन वगैरह कोई अगर हों तो पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।